Good morning, students. Welcome you all in class 10 for the subject English. I, Acharya Namita, is going to start the first chapter of the supplementary reader, Footprints Without Feet, entitled A Triumph of Surgery. The meaning of some hard words had been written on the board. The author of this story is James Herriot. He was an English writer. His real name was James Alfred White. By the profession, he was a veterinary doctor and was interested to give his first experiences about animals and their owners in the form of stories. This story is one of them. This lesson is about an ill dog named Tricky and his mistress, Mrs. Pomfrey. She was a very rich lady. Her overfeeding the dog made him very fat and deep. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and fuming, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. मिसेस पंफ्रे जब अपने पेट डॉग ट्रिकी को बीमार पाती है तो वो उसे लेकर मिस्टर हेरियट के पास जाती है। मिस्टर हेरियट जब उसे देखते हैं तो उसे देखकर उसका फर्स्ट अपीयरेंस उन्हें शॉक्ड कर देता है, क्योंकि वो ह्यूजली फैट हो गया था, ऐसा जैसे कि फुला हुआ कबाब हो। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वेट थी और उसकी जीभ लपलपा रही थी। मिसेस पॉम्फ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver iron and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much, really. मिस्टर पम्फ्रे मिस्टर हेरियट को देखते ही तेजी से कहना शुरू करती हैं कि वह बहुत काफ़ी सुस्त हो गया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए भोजन के बीच बीच में वह उसे कुछ एक्स्ट्रा जैसे माल्ट, कॉड मछली के लीवर का तेल, हॉर्लिक्स आदि देना शुरू कर देती हैं। Then Mr. Herriot asked, and did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. मिसेस पॉम्फ्रे कहती हैं कि हाँ, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो उसे चॉकलेट या केक इतना पसंद है कि मैं उसे रोक नहीं पाई, मना नहीं कर पाई। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. Mr. Herriot काफ़ी चकित हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी एक ट्रबल बन चुका था। उसका बस एक ही फॉल्ट था कि उसमें वो काफ़ी लालची था। वो सामने के भोजन को मना नहीं कर पाता था। उन्हें आश्चर्य होता है कि मिसेस पॉम्फ्रे ने सब कुछ मेंशन नहीं किया। तब वो पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, एज यू कैन सी, बट Hoskin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. एक्सरसाइज पर वो कहती हैं कि उनका जो माली है गार्डनर होस्किन, वो आजकल कमर के दर्द से पीड़ित है, इसलिए वो केवल उनके साथ टहल लेता है। Savior. Now I tried to sound savior. मिस्टर हेरियट ने कोशिश की कि अपनी आवाज़ को सख्त करने का, और उन्होंने कहा, नाउ आई रियली मीन दिस,
If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. उन्होंने मिसेस पॉम्फ्रे को कहा, इसका अर्थ यही है कि यदि आप उनके भोजन में से भोजन को कट नहीं करती हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो ये तय है कि वह अवश्य बीमार पड़ जाएगा। आपको अपने हार्ट को हार्ड बनाना होगा, उसे स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। मिसेस पॉम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Heriot. I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new design into practice immediately. Design means the new routine of diet. मिस्टर पम्फ्री अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहती हैं, यस मिस्टर हीरियट, मैं ऐसा करूँगी। और वो चल पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे खुद को डिटरमाइन कर चुकी हैं कि वो डाइट का नया नियम लागू करेंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was trotting along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैं उनके प्रस्थान को देख रहा था बढ़ती हुई चिंता के साथ, क्योंकि ट्रिकी जो है वह लड़खड़ाता हुआ चल रहा था अपने ट्वीट कोट को पहने हुए। ऑथर कहते हैं कि उसका एक वार्डरोब कोट से भरा हुआ था कोल्ड वेदर के लिए पूरा वार्डरोब कोट से भरा था। साथ ही एक रेन कोट भी था रेनी सीजन के लिए। वह संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पॉम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. जैसा कि मिस्टर हीरियट ने एक्सपेक्ट किया था, मिसेस पम्फ्रे का फ़ोन कॉल आ जाता है और वो काफ़ी चिंतित थीं और चिंता जाहिर करते हुए कहती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, वो अपने फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज कर रहा है, साथ ही काफ़ी उल्टियाँ कर रहा है। वो अपना सारा समय हांफते हुए गलीचेपन ही बिताता है। न तो वो कहीं जाना चाहता है और न ही कुछ अलग करना चाहता है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. ऑथर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रिकी एक दिन बीमार पड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को यह सजेस्ट किया कि बिना देर किए आप उसे हॉस्पिटलाइज कर दें एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट मीन्स a period of 15 days of time. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. बेचारी लेडी यह सुनते ही अचेत हो जाती हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन भी यदि वह उन्हें देखे बिना नहीं देखता है तो वो सूख जाएगा और मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's swelling. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ऑथर के अनुसार वो अपनी जगह अड़े रहे।
ट्रिकी काफ़ी बीमार हो गया था, इसलिए बस उसे बचाने का यही एक रास्ता है, ऐसा उन्होंने सोचा और वो अपनी कार को आगे बढ़ाते चले गए। मिसेस पॉम्फ्रे भी उनको फॉलो कर रही थी, विलाप करते हुए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, fabric cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. सारी स्टाफ, मिसेस पॉम्फ्रे के सभी स्टाफ खड़े हो गए थे और जो मेड्स थीं वे अंदर और बाहर की ओर दौड़ रही थीं। वे सभी उसकी कई तरह के सामान ला रही थीं, जैसे डे का बेड, नाइट बेड, फैब्रिक कुशन्स, टॉयज, रबर, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, almost all things. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. ऑथर ने यह रियलाइज़ किया कि उनके कार में इतना कुछ नहीं आएगा, इसलिए वे कार को आगे बढ़ाते चले गए। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मिसेस पॉम्फ्रे रोती हुई एक छोटे छोटे कोटों को अपने हाथ में भरकर कार के दरवाजे से अंदर की ओर डाल देती हैं। कार के मिरर में जब ऑथर ने देखा तो ऑथर ने पाया कि सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। रास्ते में ऑथर ने उस दुखी छोटे से जानवर को देखा जो उनकी सीट पे, जो ऑथर के बगल में सीट पर हांफता हुआ पड़ा हुआ था। आई पेटेड द हेड and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kid canoe, but I think I know a cue for you. ऑथर को दया आ गई, वो उसके सिर पे थपकी देते हुए कहते हैं, बेचारे लड़के, बस तुम्हारे पास तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम अपनी पूंछ को हिला सको, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। In this way, the first part of this chapter has been completed. Now you have to स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सर्किल के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि आप बुक का पूरा वर्णन आपके सामने है। आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर अपने नोटबुक में लिखेंगे, साथ ही बोर्ड पर दिए गए वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। We will be with you in the classroom when the school will reopen. We teachers will check all the given work. Okay.